Yeah. Okay. So we have people join. We can have a quick introduction round of new people first, maybe. Saurabh Raj, please, small introduction about yourself. Yeah, Navin, definitely. Hi, Vishal, and hi, everyone. I'm Saurav, currently working with Accenture Technology, and currently I have experience of 6+ years, and all are in Linux domain. And now I want to earn some knowledge about the business politics and all things. So I joined this call Okay. You are located where? Location? in Noida. Okay, Noida. Okay, thank you, Saurabh. So, Vishal. Neeraj Sharma. Yeah, hi everyone. Here's this side. I'm based out of Gurgaon, working in data related technologies. Sorry. Thank you. Ravi Kumar. Can you listen to Ravi? Hello. Yes. Yeah, Vishal. Hey. Good evening. Good evening, everybody. This is Ravi Kumar from Bangalore. I am a sales professional into sales, and I am doing my job into building automations and IoT division. Okay, thank you. Aman Raj. Yeah, hi all of you. I'm Aman Raj Varsho, learner from Chhapra, Bihar. Yeah. Sunil Goenka, please introduce yourself. Hi everyone, I'm Sunil Goenka. I'm a PR practitioner. I'm based in Kolkata. Thank you. Gaurav Agarwal. Hello. Yes, go. Yes, we can listen. Please. I'm Gaurav Agarwal, a Zaverian and a chartered accountant by academics and an HR by default. I am the co-founder of SMVA Consultants and Startup India recognized Co-Founders Planet also. Thank you. Thank you. Naman Samsuka. Hello everyone, this is Naman Shyamsuka. I'm the country manager at Learning While Traveling. Yeah, thank you. Thank you. Naman is from Kolkata. Abhishek Janta. Abhishek, are you here? We can come to you later. Prince Anand. Hello, my name is Prince Anand. I am from Bihar, Nalanda, and I'm a student. Okay, thank you. Kartikeya. Awesome. Are you here, Mr. Kartikeya? We can come to you later. Ashish Tiwari. Hello, I am Ashish and I am a firmware developer working with Marelli right now. So I have total 5 years of experience. So looking forward to see like what all topics will be covered in this meet. Sure, Thank you. sure. Yeah. Ujjwal. Yeah. Hello everyone, I'm Ujjwal Singh. I am from Allahabad, UP, and I'm pursuing BCom from Allahabad University. Okay, thank you, Ujjwal. Mr. Hari. Are you here? Okay, anyway. Yes. Atul sir, please. Yeah. Ajay, Hello. Hari is okay. Hari, please. Yes. Yeah. Thanks. My name is Hari, and I am a BE in instrumentation from Amravati University. I have completed my PGDM from Wellinkers into marketing and HR. Currently, I'm heading the sales for consumables for HPLC consumables for National Chromatography. So that's all about me. I'm from I'm located in Mumbai as of now. Thank you. Atul sir. Hi everyone, this is Apul Kumar. I'm from Chhapra and Jamshedpur in Bharat. I'm currently in San Jose in US for the last 18 years. I'm into a couple of startup type things. Okay, thank you. Anyone left? Abhishek Janta, are you still? Yeah. Anyway, okay, we'll start. So yeah, the video that I was shown and when people were joining was just to give some initial foundation to the Elon Musk journey. So now we'll come to our agenda. So there are a few points, and feel free you can have more points. So the very first thing is
the risks that Elon Musk took. Like we see, he has been like a serial and parallel entrepreneur, right? He has been doing so many things and so many things in parallel, which is a very risky thing to do, right? So let's try to understand his risk appetite from our own point of view, and maybe we can start from Atul sir. Atul sir, please, आपको क्या, like, what do you think about the risk appetite of Elon Musk? So you're saying the risk appetite for our entrepreneurs? Yeah, so because he did so many things in parallel, no relation with each other pretty much. Something is space thing, something is on car driving. But not many people can really take that kind of risk. So the risk appetite is very high, right, compared to a normal entrepreneur also, right, compared to his colleagues in some ways. So, so Elon Musk is something I find more resonance with any other entrepreneur, because I'm also a similar type of thing. Obviously, not 0.0001% successful, but the same thing. I also love the fact that he's trying to change, not start one company, two company, three company. It's literally changing 4 industries. So Elon Musk has disrupted the transport industry through the battery-powered cars, Tesla. Elon Musk has taken the space venture, SpaceX. Elon Musk has also done this whole underground, leveraging the network. What is that company? I forgot. That whole Hyperloop? cyber, sorry? Hyperloop. No, Hyperloop is different. Hyperloop is for transportation, but there's another for internet, high-speed internet. He's building that tunnel. I'm forgetting the name. Tunnel, so that people can. The Boring Company. The Boring Company. The Boring Company. So Elon Musk is the type of person who is trying to change space industry, battery or energy industry, and transport industry, many industries at the same time. And I like that part of it, because life is too boring for just doing, as Steve Jobs sold the job of Pepsi to the CEO, John Scully. He asked John Scully that, do you want to spend the rest of your life selling soda, or you want to change the world? And then John Scully joined Apple as the CEO. So that part of Elon Musk, I love, that people who want to change the world. And as he said in the speech, you heard in the video, that he more about the future, imagining the future, what the possibilities are, and hoga, nahi hoga, doesn't matter. At the end of it, try to kiya. Nobody can say ki you did not dream big enough. At least many startups also get this feedback ki idea is good, team is good, all the plan, everything is good, but you're not thinking big enough. So that's one thing which Elon Musk has. He never has thought something which people can say, nahi, Elon, this new venture you're thinking of is not big enough. He always thinks at a intergalactic scale. कि मार्स पे कैसे जाना है, और पूरी दुनिया को फॉसिल फ्यूल फ्री कैसे करना है, पूरी दुनिया में इस कार इंडस्ट्री को कैसे मतलब कि फॉसिल फ्यूल की जगह पूरी दुनिया बैटरी पावर्ड चलेगी. So this big dreams, big visions, I think I personally find it very exciting, and I'm sure many of the entrepreneurs in the group also might be. One thing which often limits us is we listen to the naysayers very often. कि हमारे parents, हमारे best friends, हमारे alumni, they will say कि नहीं हमारे ग्रुप में जैसे छोटा नमन है, तो नमन इतना बड़ा मत सोचो, तो be a bit realistic. नहीं, realist बनने से फायदा नहीं है. You have to be a dreamer, you have to dream big. At the same time, you need to also have people in the team who can make sure that they also cover those real practical realities of life. कि make sure कि आपका pocket में पैसा इतना रहे, so that you can pursue the dreams. Otherwise, you will dreams तो सब लोग के पास होता है, but to execute the dream, you need to have that financial or the business savvy. So that is one lesson. He is not only a big inventor and a dreamer, he also has the business smartness, and that he is able to build those business. And Tesla is a big company. All these companies, more than $1 billion companies. And that's something I find exciting, because otherwise, what's the point? Otherwise, a regular day job is good enough. But if you want to be an entrepreneur, then try to really, as Steve Jobs said, put a dent in the universe. And that's very exciting for me.
Yes, Neeraj, please. Okay, yeah, Vishal. To start with, this particular book which was talked about in this video, I have read this book couple of times, and this the writer Ashley Vance. So he initially tried to interview Elon Musk for this book, but uh, Elon Musk denied for that. और ये पूरी की पूरी जो बुक है इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन इंटरव्यूज विद अदर पीपल हु हैव वर्कड विद इलॉन मस्क. तो इलॉन मस्क की अपनी जुबान की कहानी इसमें बहुत कम है, लेकिन जो दूसरे लोगों ने सुनाई है वो बहुत अच्छे से सुनाई है और उसको इसने पूरा कंपाइल किया है इस बुक में. मेरे पास इसका ऑडिबल भी है, विच इज लाइक जब भी मैं कहीं फ्री अकेला ड्राइव पे जा रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो आई ऑलवेज लाइक टू रीहियर दैट स्टोरी. तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है. इसमें जो इलॉन मस्क की 2-3 कंपनीज की आज हम बात करते हैं, टेस्ला है, स्पेसएक्स है और ये सब है, तो इसमें एक बहुत अजीब सी बात मुझे जो समझ में कई बार नहीं आती है. टेस्ला सब बोलते हैं इलॉन मस्क ने बनाया किया. टेस्ला बहुत पहले से 2 लोग जो काफी हद तक इस पे बहुत ज्यादा काम कर चुके थे, लोग उनको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं. 2 इंजीनियर्स थे, एबन हर्ट और मार्क ट्रैपनिंग, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था और काफी सालों तक, 2-3 सालों तक उन्होंने काम करके और कुछ ना कुछ इसका प्रोडक्ट फेज में भी वो आ चुके थे. उसके बाद इलॉन मस्क की एंट्री हुई है. मतलब फर्स्ट 2 एम्प्लॉयज के बाद जो नेक्स्ट 3 एम्प्लॉयज थे, उसमें इयन राइट, इलॉन मस्क और स्ट्रॉबल करके एक और इंजीनियर है जिसने एंटर किया. लेकिन इलॉन मस्क वाज कैरिंग मनी, क्योंकि ही हैज सॉल्व पेपैल और सब, उसके पास काफी पैसा था. तो समहाउ ही बिकेम लाइक द हाईएस्ट शेयर होल्डर, आई वुड से द मैक्सिमम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. और आज के टाइम पे जो टेस्ला है वो एलॉन मस्क के नाम से जानी जाती है. हालांकि टेस्ला एक ऐसे कगार पे भी थी कि जो जैसे यूएस में बाई वीकली पे आउट होता है एम्प्लॉयज को सैलरीज के लिए, तो ऐसा था कि जो इस वीक जो सैलरी का पे आउट होना है फ्राइडे को, वो उसके लिए पैसा नहीं है. और एलॉन मस्क भी लगभग अपना सब कुछ लगा चुके थे जो भी उन्होंने कमाया था पेपैल के को बेचने के बाद. आखिरी के कुछ मिलियंस बचे हुए थे और सिचुएशन ऐसी थी, कोई लगाने को तैयार नहीं था. फिर भी एलॉन मस्क ने अपना आखिरी दांव खेला और बिल्कुल जीरो अपना बैंक बैलेंस करके उन्होंने सब कुछ लगा दिया. तो फाइनली उस चीज को बोलने में बुराई भी नहीं है कि एलॉन मस्क ने कहीं ना कहीं टेस्ला को दोबारा जगाया भी है, डूबते डूबते बचाया भी है. तो अगर अब उनके नाम से टेस्ला जाना जाए तो वो भी एक तरीके से ठीक लगता है. बात करें दूसरी स्पेसएक्स और इन सब की, तो इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे मतलब क्योंकि उनको जो लॉन्च के लिए जो यूएस गवर्नमेंट ने जो एक अलग से आइलैंड प्रोवाइड कराया था, कैसे वहां पे स्ट्रगल करना, वहां पे अलग से रहना, वहां पे कैसे मतलब बहुत सी प्रॉब्लम थी. आइलैंड बिल्कुल अलग सिक्योरिटेड प्लेस और वो सारी चीजें, वो बहुत स्ट्रगल भरी वो कहानियां. दिस बुक इज रियली इंटरेस्टिंग, आई वुड से. अगर कोई भी मतलब थोड़ा सा इस चीज में इंटरेस्टेड है कि मुझे कुछ अपना करना है, स्टार्टअप करना है, तो इसमें बहुत कुछ है. छोटी छोटी लाइंस हैं. राइटर ने बहुत अच्छे से एक सिचुएशन को पहले डिस्क्राइब किया है, उसके बाद उस सिचुएशन को उसने अपने तरीके से एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम राइटर साइड भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है. तो जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस, लाइक हाउ दिस बुक इज स्ट्रक्चर्ड. बाकी आगे बातें होंगी तो आई विल कीप ऑन एडिंग. Yeah. So yeah, coming to the risk again. So definite. I mean, there's no doubt he took so much risk, and like Neeraj was quoting, they were almost at the verge of bankruptcy at the end till they got support from government and things like that. You say actually we learn that if you are probably staying consistent all the time, things जो अभी हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे, things get conspired by the nature itself. That nature tries to help us get our desires fulfilled
provided the nature sees us determined towards that goal. ठीक है, तो ये एक चीज है. But having said that, still doing so many things and keep on moving with from jumping from one thing to the other thing and the next thing and the next thing is not something a lot of people are comfortable with. बहुत सारे स्टार्टअप वाले अगर एक दो बार फेल हो जाते हैं तो they try to happily join a job or something, maybe in a startup only, but they will probably go and do some job. Let's hear from other people. Aman, are you listening? Aman Raj? Yes, sir. Yes. So, Aman, like for your age people, let's say you are a student, are you like, do you think students can, have that risk appetite or things like, what we saw in the video, Elon Musk जैसा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, he did something. इस पे सर मैं ये कहना है कि जैसे इलॉन मस्क की एक कहानी हमने देखी कि उसके साथ स्टार्टिंग से ही रिस्क फैक्टर चल रहा है, ठीक है, लाइक उसके पेरेंट के साथ हुआ, उसके बाद उसने भी काफी सारी बुक्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस लिया, तब जाके उसका ऐसा मतलब वो उस लेवल तक पहुंचा. मतलब जो लोग जैसे हम लोग अभी जाके कुछ कुछ बुक्स या फिर नॉवल में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो एज ए इनिशियल एज उसने स्टार्ट कर दी, तो एक वो फैक्टर उसके साथ काम करा है, ठीक है, और उसने सीखा है. एक मतलब वो होता है नहीं कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरे के जो गलतियां होती है उससे सीख के जो आप करते हो, तो वो एक काफी बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है. तो आई थिंक सेम इलॉन मस्क ने भी किया है. उसकी मैंने एक बार पढ़ रहा था, तो उसका मेन ये था कि मुझे साइंस भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़नी है, मतलब मुझे हर एक चीज पढ़ना है और सबको मिला देना है, मतलब उसको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मिक्स कर देना, उसको फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ और मतलब डिफरेंट मिक्स करके कुछ नया चीज बनाना है, ठीक है. और आपने सर क्वेश्चन पूछा रिस्क फैक्टर का, तो रिस्क फैक्टर से स्टार्टिंग से अगर बनते रहता है ना, तो उसमें अचानक जैसे कि हम लोग सर फैमिली क्या करते हैं कि आजकल बच्चे कहीं जाते हैं, लाइक हम लोग जाते हैं तो पेरेंट्स काफी डरे हुए रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो फिर वो रिस्क वाला आपके पे हिम्मत नहीं आता. तो अगर आप शुरू से ही बनाते लाइक चलते हो ना कि हाँ ये भी करो वो भी करो, जो होता होने दो, तो तब आप शायद ज्यादा अच्छे से कर सकते हो. और एट द एज ऑफ माइंड यू विल आल्सो डू द सेम थिंग, आपको फिर उससे डर नहीं लगता. आई थिंक सो. करेक्ट. So it is like for the students to learn is start taking risk as early as possible, and even for the parents actually, that parents should also encourage a bit of risk taking right from the childhood. उससे क्या होगा कि वो रिस्क लेने का appetite बढ़ता चला जाएगा. I myself have seen this 2.5 years ago. I didn't had a lot of risk appetite, but my risk appetite actually started increasing as I plunged into this startup journey. So this is a very good lesson, I think, for students also. Let's hear from another student, Ujjwal Singh. Ujjwal, are you here? Yes sir. जो अमन ने बोला, यस सर, जो अमन ने बोला वो एकदम ही करेक्टली है. और लाइक सर रिस्क टेकिंग हमें बचपन से ही होना चाहिए, और जो हम एज लाइक मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज नहीं होती है. जैसे मेरे साथ ही है, तो मुझे ज्यादा फोर्स किया जाता है कि पढ़ाई करो, मतलब कुछ इंटर्नशिप मत करो, बिजनेस मत करो, या कुछ स्टार्ट मत करो, या कुछ सीखो नहीं, बस पढ़ाई, एक बुकिश लैंग्वेज. और मैंने भी हाल ही में इंटरव्यू देखा था इलन मस्क के बारे में. मैंने पढ़ा नहीं है उनके बारे में, मुझे इतना रीडिंग का शौक भी नहीं है, बट स्टिल मैंने उनके बारे में भी सुना था. तो उनकी सोच बहुत अच्छी थी. उन्होंने बताया, मतलब उनका वीडियो एक था कि वो अंडरग्राउंड वो पाथ बना रहे हैं कि अब जितनी भी गाड़ियां वगैरह हैं वो ट्रैफिक के नहीं, कुछ हेल्प से, तो वो नीचे अंडर द ग्राउंड गाड़ियां जाएंगी. और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस है उनकी, जो मैंने उनके बारे में इतना नहीं पता, बट हाँ जो रिस्क टेकिंग है उनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है. एक बार उन्होंने इंटरव्यू में उनका था, अब ये बात सच है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता, कि अगर किसी ने उनके जो ऑफिस है ना बोल दे कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो वो उनको निकाल देते हैं अपने ऑफिस से. हाँ ये चीज होना भी चाहिए. हमारे अंदर ये होता है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे,
आई थिंक इससे जो ब्लॉकेज होता है, पहले तो ब्लॉकेज हमें अपना रिमूव करना चाहिए कि हमसे ये चीज नहीं हो जाएगी। आई थिंक एवरीथिंग हर चीज हो सकती है। एलन मस्क कोई इंसानी जो भी करता है, आईएएस पीसीएस, लोग कहते हैं आईपीएस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। आई थिंक सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंड के ब्लॉकेज ओपन करना चाहिए और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर रिस्क टेकिंग तो सेकेंडरी चीज है, पहले तो ब्लॉकेज ओपन करे, फिर थोड़े से इनिशिएटिव्स ले और साथ चलते हैं दोनों। या सर। सो रिस्क लेंगे, फिर कुछ पहले ब्लॉकेज हटाएंगे, या सर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब डायरेक्ट आप रिस्क लोगे तो आई थिंक इट्स नॉट अ बेटर चांस। मतलब कोई बच्चा पूरी जिंदगी एक कमरे में बैठा हो, अब कह दो तुम डायरेक्ट रोड पे गाड़ी लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिखाओ कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, पहले पैदल चलना है, फिर गाड़ी सीखनी है, फिर गाड़ी सीखनी है, फिर हेलीकॉप्टर सीखना है, फिर उड़ना है। रिस्क का मतलब ये होता है, रिस्क का मतलब ये थोड़ी ना होता कि डायरेक्ट कूद जाओ। दैट्स नॉट इट। Correct. Thank you, sir. That's very much like standard 1, standard 2 primary. Yeah, sir. तो यहाँ पे I think in fact ये सब चीजें पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए या समझना चाहिए कि I think it's like कुआं का मेढक वाला जो एक कहावत होता है कि कुआं जितना बड़ा मेढक उतनी बड़ी छलांग लगाता है। That's it. So yeah, Mr. Hari, you want to say something, please? Mr. Hari? यस मुझे जस्ट इसमें कुछ चीजें और आई वांट टू शेयर कि जैसे रिस्क लेना, अभी जो जस्ट अभी माय फ्रेंड जो अभी बात कर रहे थे, सो उन्होंने तो उन्होंने बोला कि मींस बच्चा रोड पे जाके मींस ही शुडंट बाइक विदाउट नो, और सही है कि इवन आई फील इलन मस्क जो है, जब इन्होंने व्हेन ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट अबाउट दिस स्पेस, लाइक he wanted there is issue with voice, I think your voice is like I will maybe you can just rejoin, disconnect and rejoin. That okay, we'll come to you. Naman, are you here? Yeah, is it audible now? So you are one of the youngest person here, first year college जैसा बोल सकते हैं तुम्हें. What do you think about that, like what Aman said? So Aman is in final year and Ujjwal, you are in which year? I forgot, but you are also student. Sir, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी एग्जाम मैंने मेरे पूरे हुए भी नहीं है, मैं शायद थर्ड ईयर पहुंच जाऊँ, आई एम नॉट श्योर अभी. Okay, so third year, we'll assume third year. Yeah. Well, ठीक है, चलो Naman, yes, now coming to you. So we are going in the hierarchy. Yeah. So Elon Musk has a very great personality, and I also admire him because of his so much scientific ventures. So what interested me in Elon Musk is that he has the urge to learn. Means not just learn and just go ahead, to continuous learn from its feedback and learn from anywhere. So one less known fact about Elon Musk is that when he was when he had an idea of PayPal, he didn't know how to code. So he obviously self-taught himself about programming, and he and one of his founders, collaborated and founded PayPal. So, and his hard work and characteristic work ethics also inspire me. So these are the two main instincts which Elon Musk has, very exceptional. And one thing I would like to say is, like, Elon Musk, every day when he wakes up, he has a reason to wake up. He has a reason. He has an aim. He has a goal, and it's just a single goal. It's not like that. We sometimes have so many goals, but this world is scarce, so we have to take an opportunity and we have to lose another opportunity. So it's like that. Correct. Yeah. Mr. Hari, are you able to connect? He's connecting. Neeraj, yeah, you raised your hand, please. I think then Gaurav is also unmuting. Maybe Gaurav can speak later after Neeraj. Yes, Neeraj, please. या ये विशाल, हम बात कर रहे थे रिस्क टेकिंग और वो सारी बातों की कि कैसे मतलब बीइंग अ स्टूडेंट भी आप सब इतना सब रिस्क ले सकते हैं या लेते हैं नहीं लेते हैं. तो मुझे इस बुक से एक स्टोरी याद आ रही है. जब ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उन्होंने फर्स्ट जो वहां से ग्रेजुएशन की थी वो इकोनॉमिक्स में थी.
then he also did his second graduation from Penn only in physics. तो पैसे कुछ खास थे नहीं, coming from a very humble background. मस्त जो साउथ अफ्रीका से जो पहले कनाडा गए थे, तो वो वहां पे एक अपने अंकल के पास गए थे, और somehow जब वो वहां पे पहुंचे तो उस टाइम तक मतलब टेलीफोन वगैरह का ऐसा कुछ था नहीं कि पता चल पाए, और उनकी मदर साउथ अफ्रीका में थी और वो सीधा कनाडा पहुंच गए थे. और when he was searching him around कि उस सिटी में वो कहाँ पे है, कुछ आइडिया नहीं था. उन्होंने निकलने से पहले साउथ अफ्रीका से एक पोस्ट कार्ड, उनको जरूर एक लेटर भेज दिया था. लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको पता चला कि दैट अंकल हैज डाइड, ही पास्ड अवे. और फिर उसके बाद कुछ नहीं. अब द क्वेश्चन स्टार्टेड अगेन कि हाउ टू सर्वाइव. तो उसके बाद जो वो सारी मैनुअल लेबर की जो वो स्टोरीज हैं, वर्किंग इन माइंस, और वो स्टार्ट हुआ. और उसके बाद फिर कमिंग टू यूएस, सारा जो उन्होंने उस टाइम तक अपने फाइनेंसेस को खुद से मैनेज किया. तो जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में आए तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ पे कैसे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता हूँ, साथ में एंजॉय भी कर सकता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा घर खाली पड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास ही. 10-12 कमरों का करीब घर था, मतलब 2-3 मंजिल बना हुआ बहुत बड़ा घर. उन्होंने वो पूरा का पूरा घर रेंट पे ले लिया. और रेंट पे लेके वो क्या करते थे, बिकॉज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वांट्स टू एंजॉय, तो वो वहाँ पे हर वीकेंड पे बड़ी सी पार्टी रखते थे, जिसका पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रॉपर उसको एडवर्टाइज करके कि ऐसे आज शाम को पार्टी हो रही है एंड एवरीवन इज इनवाइटेड, दिस मच इज द एंट्री फी फॉर दैट. और वो वहाँ पे पार्टी कराते थे लोगों की. और सबसे मजे वाली बात यह है कि वो लोगों को खूब पिलाते और मस्ती कराते, लेकिन अपने आप एक घूंट भी नहीं पीते थे. एलॉन मस्क के बारे में बात बोली जाती है कि वो पीने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, मतलब उनके साथ खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, लेकिन खुद नहीं पीते हैं. तो उससे फिर उन्होंने उस तरह से जो वहां से पैसा कमाना शुरू किया, तो उससे अपनी एजुकेशन को उन्होंने बहुत अच्छे से फंड किया. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि उन्होंने कैसे एक बड़ा सा घर लेके और अपने वहां से ही उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी ड्यूरिंग इनिशियल कॉलेज डेज. Sure. Yes, Mr. Hari, your comment. Mr. Hari, can you hear? Cannot hear you. Okay, Gaurav, you wanted to say something, please? Yes. मैं एक्चुअली सबका सुन रहा था, तो मेरी 3 ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा अतुल सर से कि इतने सारे बिजनेसेस एक बंदा हैंडल कर रहा है, तो क्या कंफ्यूज नहीं हो जाता, किस तरीके से हैंडल करना पड़े, कैसे कर रहा है, अपने एज एन एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकते हैं. मेरा इसमें ये मानना है कि जितने भी बिजनेसेस आप अर्न करो या जितने भी बिजनेसेस आप रन करो, उसमें सबसे मेरा एक खुद का फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला ये है, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर प्लस डोमेन एक्सपर्टीज इज इक्वल टू सक्सेस. मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर प्लस डोमेन एक्सपर्टीज इज इक्वल टू सक्सेसफुल बिजनेस. ये क्या हुआ, ये इसका मैं इलैबोरेट करता हूँ इसको. जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज हर बिजनेस के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो होनी ही पड़ेगी आपको. और हर एंटरप्रेन्योर में वो सिमिलर क्वालिटीज, अगर आप कोई भी बुक्स उठा के देखोगे या किसी भी बड़े दिग्गज की स्टोरी देखोगे, आपको मोर और लेस वो स्टोरीज या फिर क्वालिटीज इनहेरेंट चीज सेम मिलेगी. तो वो क्वालिटीज अगर हो, प्लस आपका डोमेन का एक्सपर्टीज हो, किस भी डोमेन में हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर में हो या फिर ट्रैवल एजेंसी में हो, एचआर में हो, फाइनेंस सर्विस में हो, पीआर में हो, किसी भी सर्विस में हो, अगर ये दोनों का मिश्रण होता है ना, इसका मतलब है वो सक्सेस की तरफ बेहतर बढ़ रहा है. इसीलिए जो आपका पॉइंट है कि तो उनके पास वो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर थी, प्लस वो डोमेन एक्सपर्टीज धीरे धीरे करके वो या तो अक्वायर करते गए या उन लोगों से जुड़ते गए जिनके पास वो डोमेन एक्सपर्टीज थी. इस कारण उनका वो सक्सेस रेशियो हर बिजनेसेस में बनता चला गया. ये मेरा जो पहला जो हिस्सा है डिस्कशन का. सेकंड, जो कई जो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ने बोला यहाँ पे कि they mentioned about the family pressure or the kind of mindset they have and that is preventing them to actually take a plunge into startup. उनके लिए एक ही चीज है. स्नेह देसाई का मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. I mean, it might be quite offensive to someone, but मुझे ये बात अच्छी लगी. Feel free to provide your opinion on that. उन्होंने कहा, kindly surround yourself
with those kind of people whose shoes you want to get into. So उसको elaborate अगर मैं करूं, अगर आप probably $1 million earn करना चाहते हो, या फिर probably whatever amount, whatever stage you want to earn, try and read about those people. अभी obviously आप अगर मैं रितेश अग्रवाल बनना चाहता हूँ तो मैं रितेश अग्रवाल के साथ hang out नहीं कर सकता. But I can read about them, Google, YouTube, etc. I can try and gain the kind of knowledge which these kind of people have acquired over the years. और अभी इतना इजी माध्यम हो गया है जिससे अपने इजीली बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को. एंड वन मोर थिंग टू ऐड हियर, जस्ट जो आपका बैकग्राउंड रह चुका है वहीं पे आप रुक नहीं सकते. यू नीड टू टेक एक्शन. एज इन अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से आए हो तो कोई जरूरी नहीं, जैसे कई बड़े आदमी बोलते हैं ना कि जिस बैकग्राउंड से आपने जन्म लिया है कोई जरूरी नहीं है यू डाई विद द सेम बैकग्राउंड. सो ट्राई एंड इंश्योर कि आप लोग भी कुछ एक्शन लो. आप लोग एक्शन लोगे तो वो जो फैमिली है, दोज आर द मोस्ट सेट ऑफ पॉजिटिव वेल विशर्स. वो तो आपका अच्छा ही चाहेंगे, वो लोग दे केयर फॉर यू. सो यू नीड टू चेंज द गेम एंड बी अ गेम चेंजर. उसके लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा. कैन नॉट एक्चुअली, दीज आर नथिंग बट एक्सक्यूजेस अकॉर्डिंग टू मी. सो यू गाइज नीड टू टेक एक्शन एंड सी व्हाट यू कैन डू विथ योर ओन फ्यूचर. Yeah, sure. So it's I think what Gaurav said, like you need to take action fully. But let's say when the child is very small, right? That child cannot just take action just like that. Thoda sa, it's a taper. So it's not fully independent, but it's not fully relying on someone also. It's kind of, students should start taking some action and then, try to convince them. Slowly, maybe, just a cycle se hota hai. धीरे धीरे वो पेरेंट्स भरोसा कर लेते हैं कि जाओ बेटा साइकिल चलाओ तुम शहर में. यस मिस्टर रवि, प्लीज. Hi everybody. So the most exciting topic for entrepreneurs to read about Elon Musk. He's not a man. For entrepreneurs, he's like a Bible. For me, it is like Bible. You can read about him anything. So I will start with this. Okay. So this is being said by Elon Musk. I do not expect to do what is possible. I want to do what is needed to be done. And this is what he followed throughout his career. If you look Elon Musk at two sides. Vishal, I will come to that point of risk later. Okay. Yeah, sure. Yes. So you look at Elon Musk at two sides. He is very normal guy. If you look at that side, he's a very normal guy. He has done PhD, then enter into entrepreneurships or maybe business. Most of the people whom we read about, they have either dropped out or they very at a graduation's level and kind of. But he's the persons who went up to PhD, drop out from the PhD, and then he started the business full-fledged with Jeep2 with his brother. But before that, much of a little bit of experiment he was doing as very normal people used to do with his own life, working life, side by side. So one is that he's very normal in his approach, everything. But what he like as we speak about Ratan Tata told once, you should have a power to take the decisions and then later make it right or wrong. Let the people to think about. But I have power to take a decision. So take a decision first and then do it. And this is what the principle, similar kind of principle which is followed by Elon Musk throughout his career. I will put this with the examples or the clarity on the things which he has done. So he has not done anything special, but he always asks there's nothing which cannot be done. So I will keep on doing the same things, but with a different strategy, with different ways, with different people, like that. So when he was doing up to now, we have already talked about his how he went from childhood to PhD. So few of speakers already talked about it. So I will speak after that. After when he went for the PhD, he and his brother started this company Jeep2, which he sold to Compaq, and very he give his 100% to
make that company in more in terms of money and all, and then he sold it to the Compaq. After that, he started all those things too. So in marketing terms, there are two sets of business happens. One business which is in, we call it as a red zone, red ocean. Red oceans are the markets where people do like businesses compete with each other, with maybe sales, maybe money, maybe positions, maybe market shares and kind of. But there is one more market, which is blue ocean markets. And the whole market combines of red oceans and blue oceans. Red oceans already explored market. Blue oceans always unexplored market. So he started with unexplored market, which was Solar City. Solar City, if you talk about that itself, he failed once, twice, and then he keep on doing that things, and then somehow he achieved Solar City plant. Then he came to Tesla, then SpaceX, then Tesla. So in SpaceX also, if you read the case study of SpaceX, he went to Russia. He did a lot of negotiations over there with Russian scientists. They like with the prices which they were asking, he was not able to do it. So he come back to America again, and then he started reading his own with internet and books and all, and then he started developing these things, SpaceX program. And then first time he got failed for first satellite. Second time got failed. See, so first time initially only satellite was got blast. Second time it went to the space and then blast. And third time he sends, but it was relocated, like it unable to go to the positions where it was supposed to be. And then fourth time he shoot out. See the risk pattern that he took. So it is well said ki I want to do it. Maybe there will be different way to do it, but I will do it. Let it be take anything. So that is the perseverance that he put in his work to do it. So in fourth times when he sends, that satellite went by, and then the NASA people who funded, given a lot of profit sharings or maybe money for this SpaceX program. But in SpaceX, he was not designing satellite, and the concept was not designing satellites. The concept was to reuse the sent satellites, which was not there at that time in the market. It was completely unexplored market. Nobody, even up to NASA, has not thought of doing some things by a private company, like to reuse the satellite, which is sent. Before that, it was like once you send the satellites, it will not come back to the Earth. It will be there in the universe. After use also, it will be rotating all around. But he come up with the concept to reuse the satellite. Then in Tesla also the same things happened. It was very well said. It was Tesla was founded by two engineers. But then he took it up as it was into, it was similar to the car, which is to be on the basis of solar energy, a battery, not the regular one, battery. So not on the regular one, which petrol or diesels do use. So first model of Tesla, when came into the market, the estimated cost and the actual cost was double of the, it was exactly double. Then again, it introduced in the markets, nothing was being sold. Again, he said to go for the second model. Second model, when it comes to the markets, again, it was not up to the requirements rate of the market. And the third model of Tesla, which came in, which was at a price, which was at a price at which market was operating. And then it got hit, it rocketed the sales, and then thereafter the story of Tesla's form. So this speaks about him, the being simple in terms of approach, but being very rigid in terms of not feeling the failure. So he always said these things, ki failure is an option. Failure can never be an hindrance or something to be stopped. It's always an option. So when you fail, find an options to correct it, find an options to get it done again. So this is what make him little bit unique in terms of the persons where he being.
So there is only 2 persons in that scenario. I find, as per me, there is only 2 persons right now in the world who are into that segment. It is one, Elon Musk. Second is Richard Branson, who do have a similar kind of Mindset. thought mindset. Yes. So Mr. Anurag has joined. Anurag, can you listen to me? Can you hear me, Anurag? Yes. Yes, Yes, please. Please, yes, yeah, a I am small listening. introduction about yourself, and then you can talk a bit about Elon Musk. What's your thought? Actually, your voice is breaking, not audible. Sorry. Is my voice clear now? Vishal is clear to me. Yeah. I think Anurag, maybe you can exit and enter again. Okay, I'll just type in the Hello. chat box. Anurag, can you hear me now? Okay, I'll type in the chat box. Yes, Neeraj, you want to add a comment, please. So Vishal, before Yeah. Neeraj, I just want 30 seconds more on the risk part. Sure, Mr. Ravi. Was Then there in the maybe you can speak. Yeah, for the risk part, of course, this risk part is very familiar, and it is always to a particular individual. Individuals do have a capacity how much risk he wants to take. Okay, but this risk taking capacity always vary with the situations, parameters, and the time spent of the present situations. Like, let's say, the questions floated to the students. I will suggest students do have 100% risk capacity to take on. If I am a student, I had to take a risk, I will say 100% I will take a risk. But see, if at the age of Vishal or me, where we have a married life and children and all, so our risk capacity even got deteriorated in terms of 50%, so maybe below that even for many people. Yeah. Yes, please. या विशाल, सो 2-3 बातें हुई हैं, मैं एक एक करके थोड़ा उनके बारे में बोलना चाहूंगा. वन इज अबाउट रिस्क. तो जो इलॉन मस्क की रिस्क की थ्योरी है वो थोड़ा डिफरेंट है. वो बोलते हैं कि मैनी पीपल थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट रिस्क. इनफैक्ट इट्स अपोजिट उनका कहना है. और गुड एंटरप्रेन्योर्स लर्न बाय फेलियर, जो कि मतलब आजकल बहुत कॉमन है. वो एलॉन मस्क बहुत गलियाते हैं, बहुत ज्यादा गाली वाली देने वाले आदमी हैं. वो इसको बोलते हैं फेलियर पॉर्न, विच इज ऑल ओवर द इंटरनेट, कि फेल हो तभी सक्सेस मिलेगा और ये है वो है. तो और वो एफ वर्ड का भी बहुत यूज करते हैं उनकी, अगर आप पढ़ोगे या कहीं पे सुनोगे तो वो बोलते हैं गुड एंटरप्रेन्योर्स लर्न बाय सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, नॉट बाय फेलियर्स. उनका जो स्टार्टिंग में जो जिप्टू की स्टोरी है, उनका एक बहुत सुपर्ब कंपटीशन चल रहा था x.com से. तो उन्होंने क्या किया, जो x.com थी, बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था, उन्होंने अपने बिजनेस को उनके साथ मर्ज कर दिया x.com के साथ. तो इसके बारे में एलॉन मस्क कहते हैं कि जो वो कहानी है ना कि आई हैव टू एवरी टाइम आई हैव टू किल द कॉम्पिटिटर, इट्स नॉट दैट. यू कैन ऑल्सो सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बाय जस्ट merging your businesses. If you are going towards the same destination, तो आप साथ में भी काम करके वहां पहुंच सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको किल ही करना है, फेल होना भी जरूरी नहीं है. the main thing is about solving the problem. एक और बहुत वो एक इम्पोर्टेंट चीज पे जो बहुत फोकस किया उन्होंने स्टार्टिंग से, वो था टैलेंट हायरिंग पे. उनका मानना है कि आप बहुत सारे, इट्स अ मिस्टेक टू हायर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल to get complicated job done. वो कहते हैं कि अपना when you are running a company, we always knew it would take one great programmer to solve hard problem in one night versus 10 mediocre programmers taking a month to screw up your problem even worse. तो इलॉन मस्क का इंटरव्यूइंग प्रोसेस के बारे में भी आप पढ़ोगे. स्टार्टिंग से जो उनकी टैलेंट हायरिंग टीम को हेड करती थी, शी इज एन इंडियन, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सम सिख लेडी. तो उनका इंटरव्यू भी किया है एशली ने, जब ये बुक उन्होंने लिखी है, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई है उनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में. हर एक सिंगल कैंडिडेट, इवन मतलब आफ्टर रीचिंग 4-5 years, और जब थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर वर्किंग विद देम, वो हर एक इंटरव्यू में अपना कहीं ना कहीं 5 minutes 10 minutes जरूर देते थे कैंडिडेट की. और उसमें वो क्या करते थे, बड़ा अजीब सा मतलब इंटरव्यू रहता था. कैंडिडेट सामने जाके बैठता था, कई बार पूरा इंटरव्यू 10-15 मिनट का इंटरव्यू खत्म हो गया, 45 minutes का इंटरव्यू खत्म हो गया, इलॉन मस्क ने बंदे से आंख मिला के नहीं देखी.
वो अपना कुछ काम कर रहे हैं साइड में, अपने स्क्रीन पे उनका ध्यान है, और इधर टेबल की दूसरी साइड बंदा बैठा हुआ है, और वो उन्होंने अपने आप को पीछे थोड़ा सा घुमा भी लिया है, टर्न भी कर लिया, उन्होंने देखा ही नहीं बंदा कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। जो आजकल सब बातें होती हैं आंखों में आंखें डाल के, उनको कोई वो नहीं, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछे और वो किस तरह से जवाब दे रहा है, बस उससे मतलब है। और 45 मिनट्स का इंटरव्यू। तो वो जो लेडी है जो टैलेंट टीम को हायर करती थी, बोली कि मैं जब बंदा इंटरव्यू के लिए इलॉन मस्क के रूम में जा रहा है ना, उससे पहले मैं उसको आधे घंटे के लिए खुद काउंसलिंग करती थी कि इट कैन बी वेरी बैड, और ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि वो आपसे आंख भी ना मिलाए। और उस तरह से फिर मतलब उसको पूरे तरीके से जब कैंडिडेट को वो बता देती थी कि ये तरीके से वो आपसे बात कर सकते हैं, वो बहुत गुस्से में भी आ सकते हैं, आपने अगर कुछ अजीब बोला तो, तब मैं उसको रूम में भेजती थी इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज हाउ, मतलब इलॉन मस्क का जो एटीट्यूड है अबाउट नॉलेज, अबाउट एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफरेंट। उनके बारे में एक बात बोली जाती है कि ही कैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उनके सामने, जैसे अभी लास्ट स्पीकर बोल रहे थे कि वो रशिया गए, वहां से उनको रॉकेट की जो डील जो वो करना चाह रहे थे कि मैं कुछ बने बनाए रॉकेट ले लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ उन्हीं से, तो वो फाइनलाइज नहीं कर पाए। तो ऑन द वे बैक उन्होंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो ग्रास्प कर पाते हैं अपने आप से, जस्ट मतलब पढ़ के, कि मतलब लोग बोलते हैं कि बड़े से बड़े इंजीनियर्स जिन्होंने 10-10 साल काम किया है इंडस्ट्री में, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि जितना वो, और इतनी जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से अपने स्क्रैच से अपने रॉकेट्स को बनाया। वो चाहते तो आजकल यही चलता है ना कि ठीक है कुछ बना बनाया थोड़ा सा खरीद लो, उसको इम्प्रूव करो और फिर आगे काम करो। नहीं, उनकी वो डील फाइनलाइज नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा कि ये मुझे लूटने के चक्कर में, इनको लग रहा है कि ये लड़का पीछे कुछ कंपनी बेच के आया है, नया नया इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, आजकल पैसा खूब मिल रहा है इस फील्ड में, और चलो इसको लूट लेते हैं। रशियंस के माइंड के बारे में उनको ऐसा लगा, और फिर उन्होंने जिस तरह से वो स्ट्रगल किया है, 3 फेलियर्स, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल किया है, और वो सब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। एक और बात हुई थी कि वेयर यू बॉर्न इट्स नॉट इन योर हैंड, बट वेयर यू विल डाई इट्स इन योर हैंड। तो मस्क बोलते हैं कि आई वांट टू डाई ऑन मार्स। मैं पैदा धरती पे हुआ हूँ, लेकिन मैं मरना वहां चाहता हूँ। और सोलार सिटी की बात हुई, सोलार सिटी इज अगेन नॉट फाउंडेड बाय हिम, इट्स फाउंडेड बाय वन ऑफ हिज कजन, और बहुत अभी तक भी उसके कजन ही इसको रन कर रहे थे। बहुत लेट आ गया, अभी 2014-15 ऑनवर्ड्स इलॉन मस्क ने सोलार सिटी में अपना थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नहीं तो इलॉन मस्क वाज, जो किम्बल मस्क हैं जो उनके भाई हैं, ही वाज ओवरसीइंग ऑल दोस थिंग्स, और जो उनके कजन्स हैं वो बेसिकली इसको फॉर फ्रंट से रन कर रहे थे कंपनी को। वो बस पैसा दे देते थे, वो मांगते थे कि हमें इतनी फंडिंग चाहिए, या हम कुछ एक्सपेंशन मोड में हैं, अभी कुछ करना है, कुछ नया खरीदना है, तो वो फंडिंग दे देते थे। 2015 ऑनवर्ड्स इलॉन मस्क ने स्टेप इन किया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे दिखाओ तुम करना क्या चाहते हो, एंड ही एंटायरली चेंज देयर मॉडल। So Solar City was again founded by other people, and later on Elon Musk improved it. उनका इम्प्रूवमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। हम टेस्ला कार्स की बात करें तो उसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले जब इट वाज इन डिजाइन फेज, उसके बारे में भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, जब आई डोंट रिमेम्बर विच मॉडल, लाइक फर्स्ट और सेकंड मॉडल, आई थिंक फर्स्ट मॉडल ओनली, उसकी डिजाइनिंग चल रही थी। तो वो एक दिन लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अपनी वाइफ को लेके आए और उन्होंने कहा कि तू 10 बार गाड़ी में चढ़ और 10 बार इसमें से उतर। उन्होंने कहा इसको अगर कंफर्टेबल फील होगा ना, देन ओनली आई एम गोइंग टू पास इट। बहुत बारीकी से हर चीज पे, मतलब जैसे टेस्ला की कार के हैंडल जो है ना, जैसे वो अगर ड्राइविंग में होती है तो अंदर चले जाते हैं, और फिर जब आप खोलना चाहते हो तभी पॉप आउट होके ऊपर आते हैं। तो किसी ने कहा यार ये क्यों फालतू की चीजें कर रहा है, अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई और हैंडल पॉप आउट ही नहीं हुआ। बट ही सो स्पेसिफिक अबाउट ऑल दिस स्मॉल डिजाइन और जो भी इसके अराउंड की जो कुछ भी, मतलब कैसा दिखना चाहिए, कैसे उसमें क्या इसमें मतलब कंफर्ट मिल सकता है, वो लोगों को पूरी रात, पूरे वीकेंड्स एक छोटे से गैप को, मतलब मान लो वहां पे दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजे के बीच में और बॉडी के बीच में वहां पे 5 mm का गैप है। वो कह रहे हैं कि मुझे 5 mm नहीं चाहिए, इसको किसी ना किसी तरह तुम 2 mm पे लेके आओ।
तो इस तरह से जो वो इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो जो कल हम बात कर रहे थे पागलपन वाली, वो दिखती है हर चीज में. So these are small things which I wanted to add, जो अभी तक बातें हुई. Amit Malik, you have written few things. Maybe you can talk about it a bit. Amit, are you listening? Amit, you'll have to unmute your mic. Anyway, he's not listening. Okay. So yeah, just read a bit. So Amit wrote that Elon and his team are created naming things, and few names are given. And then he also this celebrity thing. So एक incident अभी recently we can talk about which happened that they were trying to launch this Tesla truck, and they were claiming that the windows will not crack or whatever, one of the strongest truck, but it did crack openly. So what's let's say everyone's take on this? Was it something not taken care of, or was it something done deliberately to create a marketing buzz? Maybe Mr. Ravi can give his opinion first. Mr. Ravi, are you listening? Vishal. Yeah, sorry. Yeah. Unmute एक बार. Yes, Mr. Ravi. हाँ बताइए. ये जो recent incident हुआ. So this is the second point which I was about to talk about. Okay. That is why I put him in a simple. He is not very exceptional man. Like maybe Bill Gates or Apple CEO. Okay. He is very simple man, but he has a rigidity to follow the things which I want to do it. Failure comes in. I will take it as options and I will do it again. I will do it again. So, and he did a lot of mistakes and lot of mistakes because of his mistakes. See, before this, I will put you this. When Tesla was launched, okay. Now remember a tweet from Elon Musk. He did a tweet about Tesla as dollar prices as $420. I want to see Tesla as 420, and 420 in Western culture known as for a code for marijuana. Okay. So Nasdaq interfere in terms of revealing the inside story, and then there was a fine happened to Tesla just because of this insane tweet of Elon Musk, which Tesla bear it, and the fine was very high. I will share that report on maybe chat on something. Okay. So that is a mistake. Being a businessman or being a entrepreneurs, he behave very simple. I want to put some things. I put it. Let it be anything the loss which I am ready to take. Vishal, I want to add. Internally, I am not there in Tesla. Neither I am there in the marketing team of Tesla. I can say, but this is again not revealed to the world like why this happened, but this happened on stage. So when Elon Musk revealed the Cybertron, the vehicle of future and all, with glass, with bulletproof glass, but when he thrown deliberately he asked that the designer team to come and hit that one, and when he hit it, it got broken. But still from there, how the market he took up. He mentioned this point the next day in all the platforms. In fact, all the platforms did cover that. So it was a marketing without investment. He didn't invest anything, and all the press who were sitting in all the world press who were sitting in that conference, they took the story from there, and then Cybertron become a famous overnight without making any marketing cost. So this is very similar to Richard Branson concept, I will say. This is what Richard Branson do in his approach. I will do some things and which will be carried by the media, and it will become a marketing-less marketing, a costless marketing. One point I would like to add that is a lot of people also claim that Elon Musk was basically being subsidized by the US government. क्योंकि beat Tesla और ज़्यादातर चीजों के लिए जहाँ भी आज वो चाइना में भी Tesla is opening, so he expects and gets a huge amount of tax subsidies from the government because everybody, the vision he has sold कि solar होगा, environment
pollution nahi hoga, global warming and all that. And he does, people who buy Tesla, they buy Tesla because government has subsidized in a huge way. Tesla is more affordable through the subsidies. Correct. Yes, Neeraj, you want to Yes. add And some comments, Vishal, please? one more point, which I think you have okay also then. mentioned Yes. this one for the Elon Musk. Mhm. आप Elon Musk कहीं टेस्ला के रिस्पेक्ट में एक स्टोरी आया था मीडिया में कि there was a person who complained about the Tesla and he made sure that persons will not get Tesla. Ah, yeah. Yes, I've so heard that story. is also like a thing. See, a businessman cannot think of That is also a media marketing correct, but strategy. that is a simple man can think of this कि भैया मेरा product है नहीं, I feel jealous of कि you are telling something bad about my product and I will not be allowed to buy you. So this is very It's simple. also about ego. Great people, not everybody is APJ Kalam type of spiritual person. Elon Musk has a huge ego, and many entrepreneurs, especially successful entrepreneurs, have huge ego. Steve Jobs had a huge ego. Bill Gates had a huge ego. Elon Musk has a huge ego, and I think it's perfectly fine, right? Yeah, yes, Neeraj. Please. We can say that, but for me that term is known as simply exception. I think this ego might be just a false ego or deliberate ego, or marketing ego. Can be. I mean, this Atul, so he takes himself and his vision very seriously. तो अगर it's like a child, तो अगर आपके बच्चे के बारे में कोई बोलेगा कि बच्चा अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं है, या स्मार्ट नहीं है, बेवकूफ है, तो आप अच्छा नहीं, you won't take it seriously. तो एलॉन मस्क के लिए चाहे टेस्ला हो, चाहे स्पेसएक्स हो, चाहे जो भी उनके जो वेंचर्स हैं, सारे he takes it very very seriously with a lot of passion, lot of pride, and I think it's fair enough कि अगर आप उनके कार के बारे में कुछ शिकायत करोगे तो फिर आपको अपने आसपास भी नहीं आने देंगे, अपने कार के आसपास भी नहीं आने देंगे। नहीं आने तो नहीं दिया, वो ठीक है, बट वो न्यूज़ में आ गया ना, तो वो that gets good publicity also. वो भी और अच्छी बात है, मतलब स्टीव जॉब्स वही तो वो न्यूज़ में लाने के लिए भी तो किया जा सकता है ना, वी नेवर नो। मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, अतुल सर ने पहले ही बोली है ये स्टोरी की किसी ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने उसको ब्लॉक ही कर दिया कि ही विल नेवर बी एबल टू बाय टेस्ला इन फ्यूचर। इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। एलॉन मस्क बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं बेटर कस्टमर सर्विस में, कस्टमर एक्सपीरियंस में, और जहां पे आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात करेंगे तो एलॉन मस्क इज वेरी ओपन टू दैट। लेकिन आप इस चीज से अगर हीरो बनना चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा सा ब्लॉग पोस्ट लिखें और उसमें डिस्ट्रक्टिव वे से अगर आप उनके बुराइयां करें, या आप चाहें कि ये आदमी बहुत फ्राई कर रहा है और मैं इसको उड़ाता हूं अभी, और उस तरीके से अगर आप दूसरे रास्ते से जाना चाहेंगे तो फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, बी इट एलॉन मस्क और बी एनीवन, किसी को भी सूट नहीं करेगा ये। आप आइए, अगर आपको मेरे प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए एंड आई विल इम्प्रूव इट। आप मुझे प्रॉपर फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। लेकिन आप डिस्ट्रक्शन मोड में है तो ओके, गो फॉर अ टॉस, मैं देख लूंगा, मेरी दुनिया अलग है। आप जितना कर सकते हैं आप कीजिए, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड। अन्य उसमें ये भी है ना कि मैं आपको सीरियसली तब लोगों ने कि हु आर यू, आप हैं कौन, मतलब आपका इंटेंशन जो है ना बहुत मैटर करता है। आप बेसिकली आप अटेंशन सीख करने के लिए कि आप एलॉन मस्क को कार को क्रिटिसाइज कर रहे हो या बेकार बात है, तो आप बेसिकली आप अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको अटेंशन तो क्या, आपको मैं आपकी कार भी नहीं दूंगा। दैट्स अ स्ट्रांग मैसेज एंड इज वेरी कॉमन अमंग मोस्ट very very widely successful entrepreneurs, Elon Musk and Richard Branson and Bill Gates, Steve Jobs, जितने भी महान लोग हैं ना, उनमें ये सब कॉमन है, क्योंकि ये लोग दलाई लामा नहीं है, ये लोग समाज सेवा के लिए नहीं निकले। दे आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एज नीरज सेड, सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए अटेंशन उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनका टाइम खींच रहे हो जस्ट अपने अटेंशन के लिए कि आपको कार नहीं मिल रही टाइम पे, तो एलॉन मस्क ने उनको एक तरह से मैसेज दिया उनको भी कि भाई ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, गेट आउट ऑफ माय वे। एग्जैक्टली, आजकल इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है रिव्यू कल्चर, कि मैं एक रिव्यूअर हूँ, मैं फूड रिव्यूअर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी रिव्यूअर हूँ, और मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, या मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, या जो भी नई कुछ भी कार आ रही है, या फोन आ रहा है, मोबाइल हैंडसेट आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। बहुत पॉपुलर है ये रिव्यू कल्चर। और
इसमें मुझे जो लगता है, बजाय कि आप ओपनली रिव्यू करके और किसी चीज को अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गो टू द कंपनी, टेल हिम कि वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर उस चीज को लेके आप हीरो बनना चाह रहे हैं, आपने क्या कमाया जीवन में, आप रिव्यू ही तो कर रहे हैं। अगर कुछ हिम्मत होती तो एक आध प्रोडक्ट उतार के दिखाइए ना उस लेवल का। तो नहीं, और ये नीरज बिल्कुल सही बोला। एक और इसमें बोलना चाहूंगा कि आपका कोई वेल विशर होगा, आपका कोई दोस्त होगा, तो जैसे विशाल की कंपनी चले लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग, वैसे इस ग्रुप पे बहुत सारे लोग कंपनी है। आपकी कंपनी के बारे में या आपके बारे में कोई आपको क्रिटिसिज्म है या शिकायत है, तो आई विल रीच आउट टू यू। बट मैं दुनिया को जाकर, जो बोला ना आपने कि मीडिया में जाके नहीं छापूंगा, तो इस तरह से बहुत बड़े इवन न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई बहुत प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर भी हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, उससे भी एलॉन मस्क को डर नहीं लगता पंगा लेने में, क्योंकि मुझे पता है कि उसका इंटेंशन क्या है। वो लाइक उसका इंटेंशन है जस्ट पब्लिसिटी सीकिंग या कंट्रोवर्सी, इंटेंशन इज टू ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है तो रीच आउट टू मी, रीच आउट टू माय कस्टमर सर्विस टीम और थ्रू चैनल। बट आप मीडिया में हंगामा करें क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। एलॉन मस्क उस टाइप के आदमी है कि मैंने जितना कमाया है ना, तो मैंने अपने आप को घिस के कमाया है, अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है, और मैं उसको अगर डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इस मोड में रहते हैं, बहुत ओपन कम्युनिकेटर हैं, वो ट्विटर पे कुछ भी डाल देते हैं और उसके बाद फिर बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं, फाइन्स भी हुए हैं। जैसा अभी रवि ने बताया कि उन्होंने एक बार बोल दिया कि मैं टेस्ला को प्राइवेट करने जा रहा हूँ, आई एम बाइंग बैक ऑल द शेयर्स एट दिस प्राइस। और उस टाइम पे जो टेस्ला का शेयर का प्राइस था वो बहुत कम, ट्रेंड मतलब मार्केट में जो उसका प्राइसिंग थी वो बहुत कम थी, और उन्होंने बहुत हायर प्राइस डाल के बोल दिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली है इस लेवल पे, और वो बाद में हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर जो यूएस की जो मार्केट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो इंटरवीन किया और बहुत सारा फाइन हो गया। लेकिन ही इज अ वेरी ओपन कम्युनिकेटर। जो ये वाला एपिसोड है कि जो उन्होंने वो आयरन बॉल थ्रो किया उस ट्रक की विंडो पे, जस्ट वॉच दैट वीडियो। मतलब मैंने उस वीडियो को कम से कम 10 बार देखा है, जस्ट टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑन दैट पर्सन फेस, कि उसका क्या एक्सप्रेशन था जब वो हुआ पब्लिक के सामने। ही वॉज वेरी नॉर्मल, हो गया तो हो गया, इट्स अ फेलियर एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, और मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, उसने सीधा बोला। और मैं आई कैन गारंटी वहां पे अगर कोई और मतलब होता तो एक ये अपने आप में ही उस आदमी के लिए एक तमाशा हो जाता, उसको वहां पे खड़े होना मुश्किल हो जाता। ये इसीलिए things become very tricky. नहीं, विशाल, एलॉन जो है ना, एलॉन जैसे लोग या स्टीव जॉब, बहुत सारे लोग बहुत ही दिल दिमाग अपने पूरा आत्मा से काम करते हैं, तो उनको आप इस तरह से कुछ करोगे ना तो उनको अंदर तक से चोट लगता है, एंड देन दे विल आपको फिर से दिखाएंगे कि बॉस तुम्हारी औकात क्या है। नहीं, वो ठीक है। अभी वाला जो इंसिडेंट का बात की हम लोग, जो ट्रक ग्लासेस ब्रेक हो गए, राइट, विद throwing something, right? So I mean, the thing I saw, I think the only thing I could see, like what Neeraj also said, that he was so cool. I mean, he was still seeing some positivity in it. It didn't go through. It just broke from the surface. Crack acid. The stone couldn't go through. That thing, whatever was used. Okay. So that coolness, right? I mean, that's also something to learn from. Anything can go wrong, and massively go wrong, and like a few of his rockets didn't go through, right? So handling those failures, like अभी एक सिनेमा भी था अक्षय कुमार का, मिशन मंगल या जो भी, जब रॉकेट नहीं उड़ पाता है तो वो गाना गाता है ना, तो बाकी लोग बोलता है क्यों गाना क्यों गा रहे हो, लड्डू क्यों खा रहे हो, ये बोलता है कि लड्डू खाना मना हो जाएगा क्या, ये वो। तो somehow I could relate that to वो स्टेज परफॉर्मेंस वाला, that when things broke, he was still cool. I mean, something to learn. He just calm the audience down, like don't get too over reactive at times. पर उसके बाद भले ही जो भी हुआ हो बनाने वाले के साथ या whatever, but I think that was very good thing, and I guess that whole thing, became very viral. The video became very viral, and like हम लोग जो बात कर रहे थे, मार्केटिंग हो गया, ऐसी कूल नेचर के मार्केटिंग हो गया लेकिन बट somehow तो deliberate था, ये था debatable topic, I don't know. Somehow I feel it was a bit deliberate at times. He's a excellent salesman. Mr. Ravi might relate a bit maybe. So Mr. Ravi, you are also a salesperson. Do you think he's an excellent salesperson?
that is why गवर्नमेंट को in खींच the लिया beginning, उसने. in the beginning, one of speaker, I think Agrawal, Mr. Agrawal was telling to be a best entrepreneur, you need to have a domain expertise. Rather than I will say to be an entrepreneur, like rather than having a domain expertise, you need to have a market expertise. See, this Elon Musk or maybe Richard Branson's or maybe Apple, the person's name, Steve Jobs. Steve Jobs. They were market expertise. They see, for them, they have developed a product which was not having that product in the market. So there were no demand. They created the demand in the market. See, Elon Musk is a person who has always developed a product which has no demand in the market. So he was the person who introduced the product, created the demand. Whereas a lot of the people who are just catering the demand, we put a lot of our strategy, marketing, everything on just catering the demand. But these are the There's a very, so Ravi, very good point. I wanted to highlight is Steve Jobs also, when he created the iPad and sorry, with the iPhone, yes, he said that sometimes consumers don't know what they need, so you have to give it to them and then they will love you for that. Because sometimes customer को पता नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, तो एक टच मतलब कि स्मार्टफोन ऑफ दैट टाइप कि आपको टच से काम कर सकते हो, फ्लैट स्क्रीन से काम कर सकते हो, कस्टमर्स cannot even imagine it because they don't know it's possible. So you as a visionary, you have to show it to them and then the customers will say wow. And to put one more point, sir, this is what the basic simple things happens with investment. Like when you go to investor with something which is not there in the market, definitely that will earn or will ink onto a click, like I need to put something so that this may come live. When Elon Musk started raising fund for this SpaceX, okay, that required a lot of fund. So at that time, he started raising funds from governments, non-governments, big peoples, and those peoples who already at a positions whom you cannot fool, but they want to see, can people go to Mars? Can people go to moon? Can be possible, there is a tourism possible in space. So those are very new things which were people thought to make it live. And so the concepts came in, demand generated, and then to at some level NASA came in, and NASA they started giving orders to SpaceX for different things. But see, NASA even did not think of reusing the satellites which they were sending to the space, which this private guy thought of and make a private company on that. Same things happened with X.com. At that time, this one, it was there, one more company was there when X.com was launched, but they make it together and then they make PayPal. So Neeraj, one more point I just want to rectify. Neeraj told it's a Zip2 and NetX. No, Zip2 was exclusive Elon Musk and Kimbler, like his brother development. But this one, X.com and that other company, name it with C. No, PayPal. They together form PayPal. Okay, yeah, maybe my mistake. Yeah. That company name. Confinity. Yeah, Confinity and X.com. They together form PayPal. Yeah, later bought by eBay. Yeah. So PayPal again at that time it was not very popular in terms of online transactions. So they came into in 1999, 90s they came for the online payment gateways. Yes, Neeraj, please. सर just to summarize 5 मिनट में दो तीन points जो हमने काफी discuss किए हैं. एक आज के टाइम पे the thing which is very common upcoming thing I would say, not very common right now, लेकिन स्कूल लेवल पे अगर मैं इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह जो एटलीस्ट टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में है, रीडिंग कल्चर को बहुत बढ़ावा मिल रहा है इंडिया में, विच इज वेरी गुड कि स्टूडेंट्स में शुरू से एक आदत डाली जा रही है कि आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, जैसे भी अभी बहुत सारे और दूसरे मीडिया भी आ गए हैं उसके लिए. तो इलॉन मस्क ने कहीं ना कहीं बहुत रीड किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, अभी भी पढ़ते हैं, उनकी हर साल निकलती है लिस्ट की, दीज आर द बुक ऑफ लिस्ट विच इलॉन मस्क रेड और ये वो. तो आई जस्ट वांट टू ऐड कि कॉलेजेस में भी ये काफी डिस्कस हो रहा है, तो रीड विद अ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
लोग पढ़ते हैं, कोई ऐसे ही नॉवेल्स, नॉन फिक्शन और फिक्शन और कुछ भी उठा के पढ़ता रहता है, लेकिन रीड विद अ पर्पस होना बहुत जरूरी है। आप किस डायरेक्शन में क्या कहाँ जाना चाहते हैं और आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हर किसी के पास, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आपको किस चीज एक्टिविटी के लिए आप कितना देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पेशली टू स्टूडेंट्स आई वांट टू स्पीक इज कि आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा अपना एक फ्रेमवर्क जरूर माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे करना क्या है और क्या मैं उसी के अराउंड स्टेप्स ले रहा हूँ कि या मैं किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसी में एक पॉइंट आता है फोकस का। बहुत मन में रहता है, मतलब मैं अपने आप इस दौर से गुजरा हूँ कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये पढ़ भी लेता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ और भी कर लेता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सीख लेता हूँ, कुछ नया मार्केट में है उसके बारे में भी सीख लेता हूँ, लेकिन उस चीज में आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आपका फोकस जरूर एक रहना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, एग्जैक्टली मेरे को जाना कहाँ है और क्या मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो भी मेरे एक्शंस हैं कहीं ना कहीं वो उस चीज से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे को एक कॉर्पोरेट में भी एक मैनेजर मिले। कॉर्पोरेट में भी मतलब कई बार होता है कि आप 50 चीजें करना चाहते हैं। ओके, मेरा इंटरेस्ट अभी नई टेक्नोलॉजीज में भी है, लेकिन मेरे को मेरा जो करियर गोल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो सब चीजें जो मिक्स हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना विजन लूज कर जाते हैं। तो फोकस होना बहुत जरूरी है। इलॉन मस्क ने इस चीज पे खुद भी काफी बार बोला है कि फोकस की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। उन्होंने बहुत मतलब डिस्टर्बेंस बहुत आई है उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, डाइवोर्स, ये वो जो उनका फर्स्ट वाइफ से के साथ बहुत लंबा झगड़ा भी चला है। तो उन सब चीजों को लेके मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको ओवरकम के करके उन्होंने कैसे फोकस करके लाइफ में जो कुछ अचीव किया उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है टू हैव अ फोकस इन लाइफ। तो जब भी आप जो कुछ कर रहे हैं उसका थोड़ा सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कहीं ना कहीं वो उसकी ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक तीसरी चीज है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच वाली जो बात करते हैं। एक दिन मुझे याद नहीं आ रहा है, उन दो लड़के आए थे ग्रुप में जिन्होंने कुछ ड्रोन डिलीवरी फ्लाइंग टेक्नोलॉजीज और उनके बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि वी आर स्ट्रगलिंग विद बैटरीज राइट नाउ। तो मैंने उस दिन पूछा था कि हैव यू डन समथिंग इन दैट, कि आप जस्ट थर्ड पार्टी से बैटरी उठा के और अपना लगा रहे हो और देख रहे हो कि ओहो वी आर स्ट्रगलिंग विद देम, ओहो अगेन वी हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो इलॉन मस्क की सेम कहानी है बैटरीज को लेके। अगर आप पढ़ेंगे, बुक में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, कहीं और भी आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएगी वो स्टोरी। जब वो कहीं ना कहीं टेस्ला को बिल्ड कर रहे थे तो जो स्ट्रगल विद बैकअप एंड स्ट्रगल विद पावर और जो कैसे वो ट्रांसमिशन होगा पावर का, 2 व्हील्स और वो सारी जो बातें हैं वो बहुत इजीली मार्केट से जो भी चल रहा था ऑलरेडी अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी थी बैटरी को लेके या ट्रांसमिशन को लेके वो उसको यूज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने स्क्रैच से दोबारा से पूरा ओके मुझे बताओ बैटरी बनती कैसे है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या केमिकल्स डलते हैं, किस तरह से होता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। तो किसी ने आज भी जब ग्रुप में बातें चल रही थी कि क्या क्या हम बातें कर सकते हैं तो किसी ने फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा था वहां पे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच ओनली। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, जरूरी नहीं है कि जो लोगों ने किया है वो सब अच्छा ही हुआ है। आप दोबारा से उसको एक बार तोड़िए चीजों को और दोबारा से असेंबल करने की कोशिश कीजिए और हमेशा कुछ ना कुछ बेटर निकाल सकते हैं। इलॉन मस्क ने इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और बहुत अच्छे से अचीव किया है। लास्ट थिंग आई वांट टू स्पीक अबाउट इज इंडिस्पेंसिबिलिटी एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पीपल। उनकी एक जो सेक्रेटरी थी वो काफी टाइम तक उन्होंने उनके साथ काम किया। लगभग 10 साल तक उन्होंने इलॉन मस्क का पूरा स्केड्यूल और सारी आज किस टाइम पे कौन सी मीटिंग होंगी, किस टाइम पे कहाँ पे किस आदमी से वो मिलेंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ वो मैनेज करती थी। एक दिन इलॉन मस्क उठ के आए, उन्होंने कहा यू आर फायर्ड, क्योंकि मेरी बहुत डिपेंडेंसी हो गई है तेरे पे। तो वो इलॉन मस्क का जो एटीट्यूड है ना वो है कि मेरे को किसी के ऊपर ऐसा नहीं होना कि ये आदमी इंडिस्पेंसिबल हो गया, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे इसके बिना काम नहीं चल रहा है या ये मेरी आदत हो गई है या ये एक वो चीज हो गई है जिसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, वो तुरंत उसी दिन उसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत इजी नहीं है इनकलकेट करना, लेकिन दिस इज वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर्स फॉर इलॉन मस्क।
कि वो किसी को भी इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि जिसकी वजह से उनकी जिंदगी रुक जाए. Yeah, these are the 4 points, Vishal. Sure. Yes, Atul sir. Let's take closing comments now. मेरा फोकस पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है. मैं समझता हूँ कि फोकस जरूरी होता है, लेकिन एलॉन मस्क के लाइफ में देखे तो एक चीज पे फोकस नहीं किया उन्होंने. कार भी बनाई, बैटरी वाली कार, स्पेस पे भी गए, एनर्जी के फील्ड में भी किया, बहुत कुछ काम किया. तो वो फोकस का जो ज्यादातर टर्म कर रहे हैं कि एक ही चीज पे हम 50 साल जिंदगी पर फोकस करें, दैट इज वन फोकस. दूसरा फोकस ये होता है, और जब बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो लोग जिस एक चीज पे अभी लगे हुए हैं, दे कैन जूम इन एकदम बहुत हाई कंसंट्रेशन के साथ उस एक चीज पे पूरा, उसके अलावा दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती उनके लिए. अभी मैं स्पेसएक्स पे बना रहा हूँ तो सब कुछ स्पेसएक्स के अराउंड ही मार्स ही दिख रहा है मुझे और स्पेस दिख रहा है. बट अचानक फिर मैं वापस आ गया, फिर अचानक मैं टेस्ला में चला गया, कार में जूम. तो ये एबिलिटी बहुत सारे लोगों में होती है कि दे कैन इमीडिएटली जूम इन एंड जूम आउट. कि अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो दुनिया जिसने किताब पढ़ रहा हूँ पूरा एब्जॉर्ब कर लेना हो. बट अचानक फिर मैं अभी जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो केवल द ड्राइविंग पे पूरा फोकस है. तो वो फोकस जो होता है वो ये नहीं कि बहुत लोग फोकस समझते हैं कि नहीं आप एक ही इंडस्ट्री में या एक ही फंक्शन में या डोमेन में आप लॉन्ग पीरियड पर रहे तो फोकस का. फोकस का मतलब ये कि जो कर रहे हो उस समय आप फुल इंटेंसिटी के साथ काम करो, एंड देन यू शुड हैव द एबिलिटी टू इमीडिएटली स्विच योर फोकस. दूसरी चीज पे फोकस देना है, मुझे अब अपने टीम पे फोकस करना है तो उस टीम पे जंप कर. तो ये एक एबिलिटी मैंने देखा है एलॉन मस्क में कि ये बहुत थोड़ी अंडर अप्रिशिएटेड चीज है कि मल्टीपल डोमेन्स में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जूम इन जूम आउट करने की एबिलिटी उनका बहुत बड़ा एक टैलेंट है. Yeah, I think it's known as time block thing. I saw a video in which it was said he breaks his thing into 5-minute block. Each 5 minutes is aimed to be fully productive. So we can also maybe follow that kind of thing. 5 minutes नहीं तो 50 minute 1 hour का block हो सकता है हमारे लाइफ में. वो 1 घंटा पूरा like full concentration और full one thing, full productivity as such. Okay, great discussion for tonight. I think we learned a lot. So let's meet tomorrow with a new case study. Vishal. Yes, Ravi. Yes, please. In the last, just I want to put one more point about this. Okay. So the last point which I want to make with Elon Musk is the time frame, which is very important if you do not discuss about this. Okay. See, everything with Elon Musk do happen is with a time frame. See, the most of the products or most of the concepts which he involved into, he always has a time frame command. See, because there is no competition, so he can have his own time frame to do it. Yeah. Okay. So that's all. So time frame, I think, is basically setting deadlines for yourself because there is no one else who will set. No, not like that. See, I want to say, let's say I am making a battery car. Okay, so right now there's no people in the industry who is making battery car. So for me, I have enough time till the times I will develop it. I will go into the markets again. I will redefine it, and then people will learn to develop it. So I have enough time to do it. So I can do it 1 time, 2 times, 3 times failure. I can take up. Same in a specific case कि इधर पे कोई बंदा नहीं है जो हमारा competitions बन सके. जब the moments you got the competitions, you get very less time frame to do it. Right. If you will not do it, somebody else will do it, and then they will come into the market with your concepts. I differ a bit with Ravi's point here, लेकिन हम कल बात करेंगे, अभी टाइम ज्यादा हो गया. Right. चलिए ठीक है. Okay. We can continue a little bit on this and then continue with one more topic. Good night. Thank you everybody. Good night.